خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، مگر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے بے رخی کرتے ہوئے، یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی بجز گئے ہوئے چند دنوں کے، اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم کہو اے اللہ سلطنت کے مالک تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ قرآن سے پڑھتے ہیں، وہی آیت ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، وہی ترجمہ جو ہے یہاں پہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہی تو ہے، تم کہو اے اللہ سلطنت کے مالک تو جس کو چاہے سلطنت دے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں سب ہے خوبی، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کیا مزہ ہے اس آیت کی تفسیر میں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس آیت کو یاد کر لیجئے گا۔
वलिल्लाहु मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिमन तशाउ। आइए तफसीर की तरफ देखते हैं। अल्लाह की हिदायत एक ही हिदायत है जो मुख्तलिफ कौमों की जबान में उनके पैगंबर पर उतारी जाती रही है। वही कुरान की सूरत में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है। इस यकसानियत की वजह से आसमानी किताबों को जानने और मानने वालों के लिए कुरान की दावत को पहचानना मुश्किल नहीं। कुरान की दावत में और पिछली आसमानी की तालीमात में अगर कुछ फ़र्क है तो सिर्फ ये कि कुरान की दावत उनकी अपनी मिलावटों से दीन खुदाबंदी को पाक कर रही है। उसके बावजूद क्यों ऐसा है कि बहुत से लोग कुरान की दावत का इनकार कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि कुरान की दावत को वो अपने लिए कोई संजीदा मामला नहीं समझते हैं। अपने खुद साख्ता अकायद की बिना पर उन्होंने अपने को जहन्नम की आग से महफूज फर्ज कर लिया है। अपनी इस नफ्सियात की तहत वह समझते हैं कि अगर वह इस हक का एतराफ़ ना करें तो उससे उसकी नजात खतरे में पड़ने वाली नहीं है, मगर जब खुदा के इंसाफ का तराजू खड़ा होगा उस वक्त उनको मालूम होगा कि वह महज खुशख्यालियों के अंधेरे में पड़े हुए हैं। हर किस्म की इज्जत और ताकत अल्लाह के अख्तियार में है। वक्त के बड़े जिसको बेहकीकत समझ ले, खुदा चाहे तो उसी के हक में इज्जत और सरबुलंदी का फैसला कर दे। इल्म की गद्दियों पर बैठने वाले जिसके जहल का फतवा दे दे। खुदा चाहे तो उसके जरिए इल्म का चश्मा जारी कर दे। खुदा की नजर में अगर कोई इज्जत और ताकत का मुस्तहिक हो सकता है तो वह जो उसको खालिस खुदा की चीज समझे और खुदा की नजर में उसका सबसे ज्यादा गैर मुस्तहक अगर कोई है तो वह जो उसको अपनी जाती मिल्कियत समझ ले। खुदा वसी कायनात में रोजाना बहुत बड़े पैमाने पर ये करिश्मा दिखा रहा है कि वह तारीकी को रोशनी के ऊपर उड़ा देता है और रोशनी को तारीकी के ऊपर डाल देता है। वह मुर्दा अनासिर से जिंदगी वजूद में लाता है और जिंदा चीजों को मुर्दा अनासिर में तब्दील करता है। खुदा की यही कुदरत अगर इंसानी तारीख में जाहिर हो तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है। जो लोग हक के नाम पर नाहक का कारोबार कर रहे हो वो हमेशा सच्ची दावत हक के मुखालिफ हो जाते हैं। ऐसे दाई को बेघर किया जाता है, उसके माशी जराए बर्बाद किए जाते हैं। मगर ऐसा शख्स बराह रास्त अल्लाह की सरपरस्ती में होता है, वो उसके लिए खुसूसी रिज्क का इंतजाम करता है। दूसरों को उनकी माशी मेहनत के हिसाब से रिज्क दिया जाता है और ऐसे शख्स को बिला हिसाब ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह व इलल्लाहिल मसीर। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा व मा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। मैं यहाँ से फिर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि माना मैं समझ रहा हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कह दीजिए कि आप अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत करते हैं तो मेरी बात इत्तबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुमसे अल्लाह मोहब्बत करेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, आपके गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, आप कह दीजिएगा अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ये तर्जुमा जो लिखा हुआ है वही मैं आपके सामने पढ़ता हूँ।
मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाएं, और जो शख्स ऐसा करेगा तो अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं, मगर ऐसी हालत में कि तुम उनसे बचाव करना चाहो, और अल्लाह तुमको डराता है अपनी जात से, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। कह दो कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है उसको छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह उसको जानता है, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को अपने सामने मौजूद पाएगा, और जो बुराई होगी उसको भी, उस दिन हर आदमी ये चाहेगा कि काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। और अल्लाह तुमको डराता है अपनी जात से, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। कहो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। कहो कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, फिर अगर वो एराज करे तो अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। यहीं तक मेरा ये तर्जुमा है, और तफसीर भी देख लेते हैं। आज मैं यहीं तक तलावत करूंगा आप लोगों के सामने। तफसीर देख लेते हैं। मोमिन तमाम इंसानों के साथ नेकी और अदल का सलूक करने वाला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों को सोचना चाहिए, सुनना चाहिए अच्छे से। मोमिन तमाम इंसानों के साथ नेकी और अदल इंसाफ का सलूक करने वाला होता है। उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं, मगर जब गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती मुसलमानों के मफाद की कीमत पर हो तो ऐसी दोस्ती मुसलमान के लिए जायज नहीं। ताहम बचाव की तदबीर के तौर पर अगर किसी वक्त एक मुसलमान या किसी मुस्लिम ग्रोह को गैर मुस्लिमों से वक्ती ताल्लुक कायम करना पड़े तो उसमें कोई हरज नहीं। अल्लाह नीयत को देखता है, और जब नीयत दुरुस्त हो तो वह किसी को उसके अमल पर नहीं पकड़ता। तमाम मामलात में असल काबिल लिहाज चीज अल्लाह का खौफ है। आदमी किसी मामले में जो रवैया अख्तियार करे उसको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि अल्लाह उसका हिसाब लेगा, और उसके साथ इंसाफ के तराजू में जो गलत ठहरेगा वो उसकी सजा पाकर रहेगा। अल्लाह से किसी इंसान को कोई बात उछल नहीं है, खा वह उसने छुप कर की हो या एलानिया की हो। जब इम्तिहान का पर्दा हटेगा और आखिरत का आलम सामने आएगा तो आदमी के अमाल को पूरी खेती उसके सामने होगी। ये मंजर इतना हौलनाक होगा कि वह चीजें जो दुनिया में इसके नफ्स की लज्जत बनी हुई थी वह चाहेगा कि वो उससे बहुत दूर चली जाएं। अल्लाह किसी के इस्लाम को जहां देखता है वो उसका कल्ब है। अल्लाह किसी के इस्लाम को जहां देखता है वो उसका कल्ब है। मोमिन वही है जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक कल्बी मोहब्बत की हद तक कायम हो जाए। ऐसे ही लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत व तवज्जो का मुस्तहिक बनते हैं, और जो शख्स अल्लाह से इस तरह ताल्लुक कायम करे उससे अगर कोताहियां भी होती हैं तो अल्लाह उससे दरगुजर फरमाता है। अल्लाह सरकशों के लिए बहुत सख्त है। जो लोग आजिज़ी का रवैया अख्तियार करें वो उनके लिए नरम पड़ जाता है। ये एक नफ्सियाती हकीकत है। जिसके सीने में किसी की मोहब्बत मौजूद हो उसी सीने में महबूब के दुश्मन की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। उसी के साथ ये भी एक हकीकत है कि महबूब अगर किसी ऐसी हस्ती हो जो आदमी के लिए आका व मालिक का दर्जा रखती हो तो उसके साथ मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत की हद तक न रहेगी, बल्कि लाजिमन वह उस इताअत व फर्मा बरदारी का जज्बा पैदा करेगी। खुदा की जिस मोहब्बत के बाद खुदा के दुश्मनों से कल्बी ताल्लुक खत्म न हो या उसकी इताअत व फर्मा बरदारी का जज्बा पैदा न हो वह झूठी मोहब्बत है। ऐसे शख्स का शुमार अल्लाह के यहाँ इनकार करने वालों में होगा, न कि मानने वालों में। रसूल वो शख्स है जिसके कामिल खुदा परस्त होने की गवाही खुद खुदा ने दी है। इसलिए खुदा परस्ताना जिंदगी के लिए रसूल का नमूना ही मौजूदा दुनिया में वाहिद मुस्तरद नमूना है। तो दोस्तों यहाँ पर तलावत तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पजीर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे मैं अगले आयत पर तलावत करूंगा। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैं इस यूट्यूब पे दर्स कुरान का सिलसिला जारी किया हूँ, उसके साथ साथ अरबी जबान भी पढ़ा रहा हूँ और अरबी कवायद
اور اس کے علاوہ کیا پڑھا رہا ہوں آج کل، بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے الحمدللہ. ہاں UGC نیٹ کے اسٹوڈینٹس جو تیاری کر رہے ہیں ان کی طرف سے بہت ہی اچھا رسپانس مل رہا ہے. جو لوگ عربی میں UGC نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو دیکھیں. میں کوشچن اور آنسر کر رہا ہوں، اور میں نے بھی نیٹ کیا ہے تو جو میرے پاس مواد موجود ہیں، جو ذخیرے موجود ہیں، جو نوٹس تیار ہیں، اسی میں سے میں ہر دن 20 کوشچن دیتا ہوں. خیر، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم لوگوں کو درس قرآن سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی میرے کو فالو کر رہے ہیں تمام لوگ توجہ کے ساتھ درس قرآن کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں بھی کریں. میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.